نیوز اسٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی این ٹی ڈی سی کا ٹرانسمیشن سسٹم بیٹھنا شروع ہو گیا ہے۔ شہر کے متعدد علاقوں میں پھر سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ راوی اور شیخوپورہ سرکٹ اوور لوڈ ہونے کی وجہ سے گریڈ اسٹیشنز پر غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے اور گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی این ٹی ڈی سی کا ٹرانسمیشن سسٹم بھی بیٹھنے لگا ہے۔ شہر کے متعدد علاقوں میں پھر سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ راوی اور شیخوپورہ سرکٹ اوور لوڈ ہو چکے ہیں، جس کے باعث گریڈ اسٹیشنز پر غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ جی بالکل، اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی این ٹی ڈی سی کا ٹرانسمیشن سسٹم بیٹھنا شروع ہو گیا ہے۔ بات کریں گے شاہد ندیم سپرا سے۔ شاہد سپرا، لوڈ بڑھتا جا رہا ہے، گرمی بھی بڑھتی جا رہی ہے، شہری پریشان ہے۔ اضافے کے ساتھ ہی نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی کا سسٹم اوور لوڈ ہونے لگا ہے، جس کی وجہ سے مختلف علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے۔ ذرا نے یہ بتایا ہے کہ این ٹی ڈی سی کے شیخوپورہ سرکٹ اور راوی سرکٹ کی اگر بات کی جائے تو دونوں سرکٹ جو ہیں وہ اوور لوڈ ہو چکے ہیں۔ راوی سرکٹ چونکہ لاہور شہر کے مختلف علاقوں میں فیڈ کرتا ہے، بالخصوص جو شمالی لاہور ہے اور جو اندرون لاہور میں گریڈ اسٹیشن لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے ہیں تو وہ راوی سرکٹ سے نکلتے ہیں۔ تو اس وقت راوی سرکٹ اور شیخوپورہ سرکٹ اوور لوڈ ہونے کی وجہ سے گریڈ اسٹیشن پر ٹرپنگ ہو رہی ہے اور اس ٹرپنگ کی وجہ سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ درانی یہ بتایا ہے کہ اگر راوی سرکٹ کی بات کی جائے تو وہاں سے نکلنے والے جو لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے گریڈ اسٹیشنز ہیں، جن میں بادامی باغ، چاہ میرا، فورٹ، موچی گیٹ اور باٹی گیٹ گریڈ اسٹیشن شامل ہے، تو یہاں پر وقفے سے ٹرپنگ ہو رہی ہے اور ہر 15-20 منٹ بعد بجلی کی فراہمی معطل کی جا رہی ہے تاکہ سسٹم کو مستحکم کیا جائے۔ اس سے قبل جب پیداوار بجلی کی کم ہوئی تھی تو اس کی وجہ سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع ہوا تھا، لیکن اس وقت جنریشن جو ہے مکمل ہو چکی ہے۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی ڈیمانڈ 4500 ہے، جبکہ سپلائی بھی 4500 دی جا رہی ہے، لیکن چونکہ لیسکو نے این ٹی ڈی سی کے سسٹم سے بجلی لینا ہوتی ہے تو اب این ٹی ڈی سی کا سسٹم جب اوور لوڈ ہونا شروع ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے لیسکو کے بعض گریڈ اسٹیشن پر ٹرپنگ ہو رہی ہے اور اس ٹرپنگ کی بنیاد پر بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور اس گرمی میں درجہ حرارت چونکہ آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے اور گرمی کی شدت کی وجہ سے ایک طرف بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے اس میں صارفین کی مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ جی شاہد سپرا، بہت شکریہ۔ سگیاں روڈ، بابو سابو اور برکی روڈ کی ٹریفک کے لیے بڑی خبر ہے۔ ایل ڈی اے نے نئے مالی سال میں شامل تینوں منصوبوں کو پی سی 1 تیار کر لیا ہے۔ مجموعی طور پر آپ کو بتائیں کہ 40 ارب کروڑ سے زائد کی تخمینہ لاگت کی منظوری پنجاب حکومت کے محکمہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سے لی جائے گی اور اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ سگیاں روڈ، بابو سابو اور برکی روڈ کی ٹریفک کے لیے بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ ایل ڈی اے نے نئی مالی سال میں شامل تینوں منصوبوں کو پی سی 1 ان کا تیار کر لیا ہے۔ بات کریں گے دور نیاب سے۔ دور نیاب بتائیے گا۔ جی بالکل، لاہور شہر کے 2 سے 3 ایسے منصوبے تھے جن کو گزشتہ کئی سالوں سے نظر انداز کیا جا رہا تھا۔ اگر بات کی جائے لاہور شہر کے داخلی خارجی راستوں میں بابو سابو کی اور سگیاں برج کی، سگیاں روڈ کی، تو ابتر صورتحال ہے اور اتنی خستہ حالت ہے، اتنی بری حالت ہو چکی ہے کہ وہاں پہ اب ایل ڈی اے نے یہ تمام تر اسکیموں کو اے ڈی پی میں شامل کرایا اور اب ان کو الائیو کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس پہ اب ایل ڈی اے کی جانب سے باقاعدہ منصوبہ بندی مکمل کر لی گئی ہے، ان کے ڈیزائن تیار کر لیے گئے ہیں، پی سی 1 کی تیاری بھی مکمل کی گئی ہے اور پی سی 1 آئندہ پی ڈی ڈبلیو پی کے جو میٹنگ ہے اس میں منظور کرائے جائیں گے۔ اس میں سگیاں برج کی جو سب سے امپورٹنٹ منصوبہ ہے، سگیاں انٹرچینج سگیاں برج سے شرک پور روڈ تک، جس میں بند روڈ بھی شامل ہوتی ہے، اس کی ادرسن اور ریہیبلیٹیشن ہوگی اور 75 کروڑ سے زائد اس پہ لاگت تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اسی طرح بند روڈ، بابو سابو کی جو انٹرچینج ہے اور اس کے اطراف میں ٹریفک سرکولیشن کے لیے روڈز کی ریہیبلیٹیشن ہے، اس پہ 24 کروڑ کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ برکی روڈ پہ لاہور سکول آف اکنامکس سے لے کے بی آر بی روڈ تک روڈ کی ڈیولائزیشن کی جائے گی، اس کے لیے 40 کروڑ کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ تمام ڈیزائن نیسپا کے مشاورت سے تیار کیے ہیں۔ چیف انجینئر ایل ڈی اے مظہر حسین نے ڈی جی ایل ڈی اے احمد طارق کی ہدایت پر اے ڈی پی کی ان اسکیموں کو فوری طور پر لانے کا فیصلہ کیا تھا اور اب ان کے پی سی 1 تیار کر کے آئندہ پری پی ڈبلیو پی میں پیش کیے جائیں گے تاکہ لاہور کے اندر یہ جو انتہائی ٹریفک کے برے حالات ہیں ان شاہراہوں کے اطراف میں، ان پہ آسانی اور بہتری ہو سکے۔ جی ٹھیک ہے دور نیاب، بہت شکریہ آپ کا۔ لاہور ہائی کورٹ نے مسلم لیگی رہنما خواجہ آصف کی درخواست ضمانت کی منظوری کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔
अदालत ने करार दिया है कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के खिलाफ इल्जामात मजीद तहकीक तलब हैं। प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशी ऑफिसर के मौक़िफ़ में भी तजाद है, ये भी बताया जा रहा है। जबकि लाहौर हाईकोर्ट ने मुस्लिम लीग की रहनुमा ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त जमानत की मंजूरी का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने करार दिया कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के खिलाफ इल्जामात मजीद तहकीक तलब हैं। प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशी ऑफिसर के मौक़िफ़ में भी तजाद है, ये फैसला दिया गया है। लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से मुस्लिम लीग की रहनुमा ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त जमानत की मंजूरी का तहरीरी फैसला जारी किया गया है। बिल्कुल, आपको बताएं कि अदालत ने करार दिया है कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के खिलाफ इल्जामात मजीद तहकीक तलब हैं। प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशी अफसर के मौक़िफ़ में भी तजाद है। तो इस हवाले से आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त जमानत की मंजूरी का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया है कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के खिलाफ इल्जामात मजीद तहकीक तलब है। प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशी अफसर के मौक़िफ़ में भी तजाद है, जिसकी वजह से अभी इसमें मजीद तहकीक जो है वो दरकार है। ये फैसला जारी किया गया है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से। लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त जमानत की मंजूरी का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया है कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के खिलाफ इल्जामात मजीद तहकीक तलब है। साथ ही साथ ये भी लिखा गया कि प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशी ऑफिसर के मौक़िफ़ में भी तजाद हैं। मजीद डिटेल्स लेंगे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस मिसालिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की दरख्वास्त जमानत मंजूर करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है और ये तहरीरी फैसला 18 सफ़हात पर मुश्तमिल है। जस्टिस मिसालिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपने इस फैसले में करार दिया है कि जो प्रोसिक्यूटर नैब के हैं और तफ्तीशी अफसर हैं उन दोनों के मौक़िफ़ में तजाद है। मजीद ये भी कहा कि रेफरेंस में जो तफ्तीशी अफसर है उनका मौक़िफ़ ये है कि इस पर तहकीकात जारी हैं, जबकि नैब प्रोसिक्यूटर का ये कहना है कि रेफरेंस जो है वो चेयरमैन नैब को मंजूरी के लिए भिजवाया गया है। इस फैसले में मजीद ये भी कहा गया है कि तस्लीम शुदा हकीकत है कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कौमी खजाने को नुकसान नहीं पहुंचाया, ये इस फैसले में कहा गया है। मजीद ये भी कहा गया है कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अंदर से ज़्यादा साजात बनाए हैं और मजीद ये कहा गया है कि इसमें अभी तफ्तीश जो है मजीद तफ्तीश तलब है मामला। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के खिलाफ रेफरेंस अभी तक दायर नहीं हुआ, ये तहरीरी फैसले में कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि एमको कंपनी का नुमाइंदा पाकिस्तान आना चाहता था मगर तफ्तीशी ने उसको शामिल तफ्तीश ही नहीं किया, ये तहरीरी फैसले में कहा गया है। मजीद ये भी कहा गया है कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की बैरून मुल्क दुबई से आने वाली 2004 से 2008 तक की रकम जो है उसकी तफसीलात जो हैं वो एम्बेसी से उसकी तस्दीक ही नहीं करवाएगी। और मजीद इसमें फैसले ये भी कहा गया है कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने अपने आमदन से के जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो डिक्लेयर किए हुए हैं और जो इस हवाले से अभी तक चालान जो रेफरेंस है वो भी ट्रायल कोर्ट में जमा नहीं हुआ। ये तहरीरी फैसला है जो ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की दरख्वास्त जमानत में जस्टिस मिसालिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जारी किया है। जी मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। तो इस हवाले से मलिक अशरफ भी हमें अपडेट कर रहे थे। नैब प्रोसिक्यूटर ने रेफरेंस चेयरमैन नैब को भिजवाए जाने का बयान दिया, फैसले में बताया गया है। हम खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। एलटीए सिटी मवेशी मंडी ताहाल फाल न हो सकी। मंडी में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। मंडी में मवेशी मौजूद हैं, ना ही व्यापारी और खरीदार। मंडी में वैक्सीनेशन कैंप लगा और ना ही चेकअप कैंप। जबकि मंडी की सूरत हाल के बारे में आपको बता रहे हैं कि बदतरीन सूरत हाल है। एलडीए सिटी मवेशी मंडी ताहाल फाल नहीं हो सकी है। मंडी में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है और आपको बताएं कि मंडी में किसी किस्म की सहूलत मुयसर नहीं है। बात करेंगे हसनैन औलख से। हसनैन, क्या सूरत हाल है मवेशी मंडी की? जी, लोकल गवर्नमेंट की जानिब से शहर भर में 12 मंडियां फाल करने का दावा तो किया गया था, लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट की जानिब से दावा किया गया है उसकी कली खुलकर सामने आ गई है। गुज़श्ता रोज़ हमने बताया था कि पाइन एवेन्यू जो मवेशी मंडी है वहाँ पर सहूलियात का फकदान है, वहाँ पर मवेशी भी कम है और वहाँ पर जो ख़रीदार और व्यापारी हैं उनकी तादाद भी बहुत कम है। लेकिन आज हमने विज़िट किया है एलडीए सिटी मवेशी मंडी का, तो मेरे अकम में देखा जा सके कि अगर जहाँ तक निगाह जाती है सिर्फ शामियाने ही नज़र आते हैं। यहाँ पर ना ही कोई जानवर मौजूद है, ना ही यहाँ पर व्यापारी हैं और ना ही ख़रीदार। यहाँ पर अगर सहूलियात की बात की जाए जो रेवेन्यू है ये
रेवेन्यू इकट्ठा किया है और ये तमाम जो रेवेन्यू है ये मंडियों की बहाली के ऊपर और जो आने वाले खरीदार और व्यापारी हैं उनकी फलाह बहबूद के ऊपर, मंडियों को में तमाम सहूलियत फराहम करने के ऊपर लगाया जाएगा। लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। मेरे अकब में देखा जा सके कि यहाँ पर सिर्फ शामियाने लगाए गए हैं, यहाँ पर जो ना ही मवेशी मौजूद है ना ही यहाँ पर व्यापारी मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर मवेशियों के लिए तो बड़ी दूर की बात है, यहाँ पर इंसानों के लिए पीने के लिए ठंडा पानी मौजूद नहीं है, यहाँ पर बिजली की सहूलियात मौजूद नहीं है। और ये भी दावा किया गया था कि मवेशी मंडियों में वैक्सीनेशन का अमल जारी रहेगा। यहाँ पर ना ही वैक्सीनेशन जो कैंप है वो कायम हो सका है, इसके अलावा चेकअप कैंप जो कायम होना था वो भी यहाँ पर कायम नहीं हो सका। इसके अलावा यहाँ पर पानी की सहूलियात नहीं है, व्यापारियों के रहने के लिए यहाँ पर रहाइश का इंतजाम नहीं है, यहाँ पर पब्लिक टॉयलेट्स नहीं बनाए गए, किसी किस्म की कोई सहूलियत मौजूद नहीं है यहाँ पर सिवाय शामियाने के। यहाँ पर शामियाने लगाए गए हैं और कुछ शामियाने यहाँ पर अभी भी गिर चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर कोई सहूलियात मौजूद नहीं है। इसके अलावा अगर मंडी के इंतजामिया की बात की जाए या फिर इंचार्ज मंडी की बात की जाए, ना ही यहाँ पर जो इंचार्ज का अमला है वो मौजूद है, इंतजामिया यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसके इंतजामिया मौजूद नहीं, इंतजाम भी नामुकम्मल है। शुक्रिया आपका। सरकारी मुलाजमीन की बड़ी ईद से कबल बड़ी मौजें। मुलाजमीन को जुलाई की तनख्वाह 60% इजाफी मिलेगी। 10% इजाफी तनख्वाह के साथ 50% जून और जुलाई का स्पेशल अलाउंस देने का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। सरकारी मुलाजमीन की बड़ी ईद से कबल बड़ी मौजें। मुलाजमीन को जुलाई की तनख्वाह 60% इजाफी दी जाएगी। डिटेल्स लेंगे अली रामे से। जी अली रामे बताइएगा। बिल्कुल, सरकारी मुलाजमीन का एक तरीना मुतालबा था कि 25% स्पेशल अलाउंस या डिस्पैरिटी अलाउंस दिया है और उस पर पंजाब हुकूमत बाकायदा क्योंकि बजट में और आज महकमा खजाना पंजाब ने उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि जुलाई की तनख्वाह के साथ 25% स्पेशल अलाउंस मुलाजमीन को मिलेगा। अब बड़ी ईद से जो बड़ी मौजें हैं सरकारी मुलाजमीन की, वो ईद कुछ इस तरह से है कि 7,30,000 से ज्यादा ऐसे मुलाजमीन हैं जिनके लिए हुकूमत पंजाब ने ये स्पेशल अलाउंस मंजूर किया ताकि उनकी तनख्वाह भी मजीद दीगर मुलाजमीन की तरह अफसरान की तरह मुनासिब हो सके। अब उसमें कुछ 10 महकमे ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह में इजाफा तो नहीं होगा, ना ही उनको स्पेशल अलाउंस मिलेगा, लेकिन ये वो मुलाजमीन है जिनकी तनख्वाहों के साथ 25% स्पेशल अलाउंस हुकूमत पंजाब ने मंजूर किया। लेकिन अब जुलाई की जो तनख्वाह, क्योंकि 15 से एक पहले इनको जुलाई की तनख्वाह हुकूमत पंजाब ने दे देनी है तमाम मुलाजमीन को, अब उसमें 25% जुलाई का स्पेशल अलाउंस वो शामिल होगा और साथ ही जून का जो स्पेशल अलाउंस एरियर ला के इनको मिलेगा तो वो 50% स्पेशल अलाउंस, जबकि बजट में हुकूमत पंजाब ने और वफाकी हुकूमत ने भी 10% मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा भी मंजूर किया और वो भी 10% मिला के 60% इजाफी तनख्वाह सिर्फ 7 लाख मुलाजमीन को मिलेगी, जबकि जो दीगर मुलाजमीन है जिनको स्पेशल अलाउंस नहीं मिलेगा उनकी तनख्वाह में सिर्फ 10% ही इजाफा हो सकेगा। लेकिन ये 7 लाख ऐसे मुलाजमीन हैं जिनकी तनख्वाह पहले बहुत कम थी, लेकिन पंजाब हुकूमत अब उनको इजाफी तनख्वाह देगी। लेकिन इस बजट में और जब बड़ी ईद से कबल को जो तनख्वाह जुलाई की मिलेगी वो 60% इजाफी मिलेगी। जी अली रामे, बहुत शुक्रिया। नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम के खिलाफ शेख रशीद के मेडिकल के तलबा डॉक्टर्स ने शेख ज़ैद अस्पताल से कैंपस पुल तक एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। अजमत ऐवान से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। अजमत ऐवान बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शेख ज़ायद हस्पताल में और यहाँ पर जो जितने भी शेख ज़ायद के मेडिकल के और डॉक्टर्स थे उन्होंने NLE के खिलाफ एक भरपूर एहतजाज का मुजाहरा किया और जो एहतजाज था ये शेख ज़ायद से लेकर कैंपस पुल की जानिब तक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। और जो तुलबा हैं उन्होंने NLE के खिलाफ नारेबाजी भी की। हमारे साथ यहाँ पर मेडिकल के तुलबा भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी सबसे पहले तो मुझे ये बताएँ कि PMC ने NLE इम्तिहान को अनाउंस कर दिया है, तो आप लोगों का जो एहतजाज है उसकी आपकी डिमांड्स क्या हैं? देखिए सर, इसमें हमारी डिमांड्स ये हैं कि आपने हम पर एक जबरन इम्तहान का नफाज किया। अगर आप हमें बोर्ड पे ऑन बोर्ड लेते हैं, देखिए मेडिकल कम्युनिटी के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हम मेडिकल तलबा हैं, ठीक है। आप हमें ऑन बोर्ड लेते, हमें समझाते, तो उसके बाद हम कोई बीच की राह निकाल लेते। हम इसे बेमकसद इम्तहान समझते हैं। उसकी वजह यह है कि हम 5 साल अपने प्रोफेशनल इम्तहानात पास करने के बाद, डिग्री लेने के बाद अपनी काबिलियत मनवा चुके हैं। अगर आप ये कहेंगे कि इस इम्तहान का मकसद आपकी काबिलियत जानना है तो ये आपकी नीयत, आपकी वो मकसद ही गलत है। मैं बताता हूँ आपका मकसद क्या है। आपका मकसद ये है कि आपके पास डॉक्टरों को देने के लिए नौकरियाँ नहीं है। आपने पिछले 20 साल में हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, आपने अपना मेडिकल का निज़ाम ठीक नहीं किया। उस सब का मलबा आप इंतजामिया पर डालने के बजाय हम तलबा पर डाल रहे हैं। आपका जोर हम पर चल रहा है।
तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा PMC को कि हम मेडिकल तलबा को कॉन्फिडेंस में ले, जो PMC एक्ट जिसके तहत आपने हम पर ये इम्तहान का नफाज किया है उसको दोबारा से पार्लियामेंट में पेश किया जाए, अपोजिशन की मौजूदगी में उसके ऊपर बहस हो ताकि उसकी खामियों को दूर किया जाए। हमारी डॉक्टरों को सड़कों पर निकलने पर मजबूर ना करें, और यहाँ पर जो शेख जायद के मेडिकल के जो तलबा थे और जो हाउस जॉब के जो डॉक्टर्स थे, उनका यही मुतालबा है कि जो NLE इम्तिहान है वो किसी सूरत नहीं दिया जाए। ठीक है आसमान, शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि लाहौर में 50 से ज्यादा पार्किंग स्टैंड्स पर प्राइवेट माफिया का गैर कानूनी कब्जा खत्म ना हो सका। लाहौर ये गैर कानूनी कब्जा माफिया के हाथों लूटने पर मजबूर है। इस हवाले से बात करेंगे अली रामे से। अली रामे, बताइएगा शहर के किन इलाकों में इन प्राइवेट माफिया का पार्किंग स्टैंड्स पर कब्जा ताहाल बरकरार है? जी बिल्कुल, ये लाहौर पार्किंग कंपनी की तरफ से एक फहरिस्त जो है वो हुकूमत पंजाब को पेश की गई और इसमें बताया गया है कि लाहौर में 50 से ऐसे ज़ायद मुकामात है जहाँ पर जो प्राइवेट माफिया है उनका राज है, ख़ास तौर पर जो गैर कानूनी उनके पास जो उन्होंने पार्किंग स्टैंड बनाए हुए हैं। तो इसमें मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स भी हैं लाहौर के जहाँ पर ये पार्किंग स्टैंड है, लेकिन उन पर प्राइवेट माफिया का कब्ज़ा है लाहौर पार्किंग का, वहाँ पे कोई असरअंदाज नहीं है। तो इसमें अगर बात की जाए तो ऐवान इकबाल भी है और वहाँ पर भी प्राइवेट माफिया का कब्ज़ा है, और इसके अलावा मुख्तलिफ हॉस्पिटल जिसमें जना हॉस्पिटल, शेख जायद हॉस्पिटल, वहाँ पर भी प्राइवेट कब्ज़ा माफिया है जो है वो बड़ा जमान है। और इसके अलावा जो हमारे पास फहरिस्त इसमें सेंटर पॉइंट भी शामिल है, और इसके अलावा जो टोलिंटन मार्केट है वहाँ पर तो अब जो कब्ज़ा है वो वापस ले लिया गया है लाहौर पार्किंग कंपनी की तरफ से। और इसके साथ ही मॉडल टाउन कचहरी है, सेशन कोर्ट की जो पार्किंग स्टैंड है यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ा है, और इसके साथ ही कमिश्नर ऑफिस के करीब वहाँ पर भी जो पार्किंग स्टैंड बनाया गया वहाँ पे भी गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ा जो है उसका इंकशाफ हुआ है। और इसके अलावा सदर कचहरी, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट, वहाँ पर गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ा है, और इसके अलावा आउटसाइड मॉडल टाउन कचहरी वहाँ पर भी गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ा जो है वो बताया जा रहा है। और इसके साथ ही लंडा शू मार्केट जो है वहाँ पर गैर कानूनी कब्ज़ा है। और जी अली रामे, वज़ीर आला की हिदायत पर 4 बड़ी तरक्याती स्कीमों के लिए 1,93 करोड़ 70 लाख रुपए रिलीज कर दिए गए। पंजाब हुकूमत के स्कूल एजुकेशन को नए तरक्याती फंड बारे खुसूसी अहकाम। माली साल 2021-22 में शामिल नई तरक्याती स्कीम्स की मंजूरी के लिए डेडलाइन दे दी गई है। इस पर बात करेंगे उस्मान अलीम से। जी उस्मान। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब तालीम 2 इक़दामात के लिए मुतहरिक दिखाई देते हैं। इसी हवाले से महकमा स्कूल एजुकेशन की जारी और नई तरक्याती स्कीमों के हवाले से वज़ीर आला पंजाब की जानिब से नए अहकाम जो हैं वो जारी किए गए हैं, जिसके पेश नज़र महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से डिवीजनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को भी आगाह कर दिया गया है। और जो नए माली साल की नई तरक्याती स्कीमें हैं महकमा स्कूल एजुकेशन की, उनकी मंजूरी के लिए मुतलका फॉरम्स को डेडलाइंस जो हैं वो भी दे दी गई हैं। जबकि जो जारी तरक्याती स्कीमें हैं, 4 महकमा स्कूल एजुकेशन की बड़ी तरक्याती स्कीमें हैं, उनकी मद में 1,93 करोड़ 70 लाख रुपए का बजट जो है वो भी जारी कर दिया गया है। तमाम डिवीजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत दी गई हैं कि नए माली साल की तरक्याती स्कीमें जो कि महकमा स्कूल एजुकेशन की हैं, खुसूसी तौर पर उनको जो डिवीजनल कमिश्नर्स हैं वो 21 जुलाई तक मुतलका फॉरम से जो है वो मंजूरी दें। इसी तरह जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो भी 31 जुलाई तक अपने मुतलका फॉरम से जो है इनकी मंजूरी यकीनी बनाएं। जबकि इसी के साथ ही साथ इन नई तरक्याती स्कीमों के बारे में वर्क अवार्ड के हवाले से भी हिदायत जो हैं वो जारी कर दी गई हैं कि हिदायत जारी कर दी। बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब ब्यूरोक्रेसी के सीनियर अफसर बैरिस्टर नबील ऐवान नैब लाहौर पेश। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ नबील ऐवान को असासाजात केस में तलब किया गया था। नबील ऐवान ने 6 की बजाय 7 जुलाई को पेशी की दरख्वास्त दी थी। सराय की जानिब से बताया गया कि नैब ने बैरिस्टर नबील ऐवान के एहसासों का फोरेंसिक ऑडिट शुरू कर रखा है। नबील ऐवान की आबाई जायदाद की रजिस्ट्री और इंतकाल का फोरेंसिक ऑडिट भी किया जा रहा है। एहसासों के असल कागजात पर सियासी फॉन्ट का जायजा भी लिया जा रहा है। बैरिस्टर नबील ऐवान से एहसासों की तमाम असल दस्तावेजात भी मांगी गई हैं। खबर है खेल के मैदान से। अवामी बैरिंग T20 लीग क्रिकेट टूर्नामेंट मेन मॉडल टाउन क्लब ग्राउंड पर मेजबान अवामी बैरिंग और विजडम सेरामिक्स की टीमें आमने सामने। हाफिज शहबाज से बात करेंगे। हाफिज शहबाज बताइएगा। जी इस वक्त हम मौजूद हैं मॉडल टाउन क्लब क्रिकेट ग्राउंड पर। यहाँ पर शहर में जारी अवामी बैरिंग कॉर्पोरेट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के सिलसिले का चौथा क्वार्टर फाइनल मैच इस वक्त खेला जा रहा है, जिसमें कि मेज़बान अवामी बैरिंग और विजडम सेरामिक्स की टीमें आमने सामने हैं। अगर इस मैच के हवाले से बात की जाए तो विजडम सेरामिक्स के कप्तान ने सुबह टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और इस वक्त तक मेज़बान अवामी बैरिंग ने 65 रन बनाए हैं और उनके 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं। दोनों ही टीमों में शहर के नुमाया नौजवान क्रिकेटर शामिल हैं और बहुत से क्रिकेटर ऐसे भी हैं जिनके मुख्तलिफ जो टीमें हैं हालिया सिटी क्रिकेट एसोसिएशन की, उनमें नाम भी आए हैं। अगर इस टूर्नामेंट के हवाले से बात की जाए तो
मजमूई तौर पर शहर की 32 मुख्तलिफ क्लब्स और कॉर्पोरेट सेक्टर की टीमों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। इब्तदाई तौर पर तमाम मैचेस जो है लीग की बुनियाद पर खेले गए और उसके बाद अब ये प्री क्वार्टर फाइनल मरला जारी है जो कि कल अपने अख्ताम को पहुंचेगा और उसके बाद फिर इस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल होंगे और इस मंथ के वस्त में जो है इस टूर्नामेंट का फाइनल खेला जाएगा। अगर इस मैच के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त बज़ाहिर ये लग रहा है कि विजडम सिरामिक्स जो टीम है उसका पल्ला भाई। हाफिज शहबाज, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। देखते रहें सिटी 42।